Good morning, dear students. My name is Dr. Indermal Goel, lecturer of accountancy. Today, in this video, we will discuss one of the most important adjustment related to preparation of financial statement with adjustment to be prepared at end of the year, and it is adjustment related to debtors. You know, debtor is one of the important part of any business organization. Debtors are the outside parties to whom we have right to receive certain amount, and debtors are created through credit sales and or cash loan given or by selling the goods on credit or assets on credit or by rendering the services on credit. तो debtors से related हमारा बहुत सारा महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है और एडजस्टमेंट है. अगर आपको फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट अच्छी तरह से सीखना है तो आपको एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेटर को भी अच्छी तरह से आना चाहिए. एंड देयर इज ए डाइवर्सिटी एंड देयर आर वेरियस आइटम्स एंड टर्म्स रिलेटेड टू डेटर्स. As we have already discussed in our previous video, some important terms which are associated to debtor is sundry debtors or it is bad debts recovered, discount allowed, disallowed, provision for bad debts, provision for discount on debtors, and many more. So in this video we will try to understand adjustment related to debtors through adjustment entry, rectification entry, transfer entry and closing entries. So I have already written a question on the board, and we will consider all adjustments. The question is, prepare concerned ledger account and a trial balance is given with some name of account and some adjustment are given here and there, right? What are the items given in trial balance? Number one is sundry debtors 84,000. अच्छा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपके लिए बेटर रहेगा, मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप अपना पेन और कॉपी साथ में रखिए और जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, so that when you will solve it will be very easy for you to understand. The question is, prepare concerned ledger accounts from the following information and data, right? And पहला पॉइंट sundry debtors देनदार 84,000, फिर bad debts डुप्लीकेट 4,000 जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ. इट मींस इट वाज रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर एंड इट्स जर्नल एंट्री हैज ऑलरेडी बीन पास, तो 4,000 bad debts है. फिर लिखा हुआ bad debts recovered, तो ड्यूरिंग द ईयर आपको 6,000 का bad debts recovered हुआ. डुप्लीकेट की पुनः वसूली जिसे बोलते हैं, bad debts which was written off in previous year or in last years, then it is recovered, though the debtor is not legally responsible to pay the amount of bad debts, but some people sometimes pay their old debts to regain their goodwill in the market. So it is bad debts recovered 6,000. फिर दिया provision for bad debts 9,000. When the provision for bad debts is given inside the trial balance, it means the business already have the practice of creating and maintaining provision for bad and doubtful debts. The provision for bad and doubtful debts is created and maintained with a view to write off the loss on account of bad debts. Whenever it arises in business, it will be charged from the provision for bad debts account. Next one is discount allowed 1,500. Discount is also allowed to the good debtors during the year to encourage them for prompt payment. तो यहाँ discount allowed भी दिया हुआ है and provision for discount on debtor भी दिया हुआ है 2,600. Provision for discount on debtor is also created with a view to write off the loss on account of discount allowed to the debtor. तो इसलिए bad debts and provision for bad debts का जो रिलेशन है वो discount allowed है, provision for discount on debtor का कैसा है रिलेशन, वो मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बताऊंगा. अब हमें बोला प्रिपेयर कंसर्न लेजर अकाउंट. आप देखिए बैलेंसेज ऑफ 6 अकाउंट इज ऑलरेडी गिवन, तो हमें लेजर में ये 6 खाते बनाने पड़ेंगे, राइट? अब हमारे एडजस्टमेंट क्या है? पहला एडजस्टमेंट है बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ 6,000, यानी कि फर्दर बैड डेट्स है तलपट के बाहर लिखा हुआ एडजस्टमेंट. तो पहला एडजस्टमेंट है 6,000 पे डुप्लीकेट की और एप्लीकेट करिए. फिर दूसरा एडजस्टमेंट है क्रेडिट सेल रॉन्गली एंटर्ड ट्वाइस रुपीस 12,000, यानी कि उधार बिक्री के 12,000 रुपए गलती से 2 बार लिख दिए, तो 2 बार लिख दिए तो
एक बार अपन वापस क्या करेंगे, रिवर्ट करेंगे, इसकी एक रिवर्स एंट्री बना देंगे और ये हमारा जो एरर ऑफ कमीशन है हिसाब की अशुद्धि है, आपने 2 बार लिख दिया, तब इसको कटिंग एंड ओवरराइटिंग तो करनी नहीं है, तो रेक्टिफाइड एंट्री करके आप इसको सुधार करेंगे। फिर लिखा हुआ लिस्ट ऑफ डेटा रॉन्गली ओवरकास्ट, 8000 में से देनदारों की सूची का योग गलती से ज्यादा लगा दिया, तो इसको भी करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नो मिस्टेक एंड error is to be permitted in the books and accounts. So when some mistakes are committed during the year and later on it is detected or discovered, you have to rectify them for preparation of the true and fair picture of financial statement. Next one is discount allowed. Discount disallowed है, तो देखिए डिस्काउंट अलाउड की एंट्री होती है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब ये डिसअलाउड हुआ, मतलब आपने जो डिस्काउंट दिया उसको कैंसिल कर दिया बाय ₹300, तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी क्या, डेटर टू डिस्काउंट। फिर नेक्स्ट है हमारा चेक डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर्ड का मतलब है कोई देनदार जिसने आपको चेक दिया, आपने वो बैंक में जमा कराया, तब आपने उसकी एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। जैसा कि हमने जब बैंक वाला कैश बुक बनाई थी तब मैंने आपको बताया था, इसकी एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैंक में टू डेटर लिखा। तो व्हेन द चेक इज डिसऑनर्ड, इसका मतलब हमारा ना तो बैंक बैलेंस बढ़ा और वो देनदार जिसने आपको चेक दिया था ही अगेन बिकम योर डेटर, तो इसकी भी रिवर्स एंट्री हो जाएगी डेटर टू बैंक। चाहे डिस्काउंटेड बीआर डिसऑनर हो तब भी एंट्री होगी डेटर टू बैंक, और अगर कोई चेक डिसऑनर हो जाता है उसकी भी एंट्री आप करोगे अपनी बुक में डेटर टू बैंक, तो डेटर में टू बैंक आ जाएगा। हमने डेटर अकाउंट बनाना है इस क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 12,000 सेंट ऑन अप्रूवल व्हिच वाज रिकॉर्डेड एज सेल्स एंड द रेट ऑफ प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल। तो ये एक बहुत अच्छा एडिशन है। आपने ना 12,000 के लागत का माल किसी ग्राहक को इस कंडीशन पे भेजा कि अगर आपको पसंद आए तो रख लेना और नहीं पसंद आए तो लौटा देना। तो ये जो माल भेजा उसकी लागत तो 12,000 है, लेकिन हमने उसको भेजा गया इट वाज रिकॉर्डेड एज सेल्स दिया हुआ, मतलब आपने उसकी सेल्स में एंट्री कर दी और प्रॉफिट की रेट क्या है 20% ऑफ सेल्स, और हमें सेल्स की अमाउंट है दी गई, तो फिर हमें इसका सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट है ना गुड्स एंड ऑन अप्रूवल, हिंदी में बोलते हैं पसंदगी पर भेजा गया माल, इसकी जो एंड ऑफ द ईयर है ना वो एडजस्टमेंट एंट्री होगी। जब हमने माल भेजा था इट वाज रिकॉर्डेड एज सेल्स, तो हमारी क्या एंट्री थी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब आप एंड ऑफ द ईयर क्या करोगे, आप इसकी रिवर्स एंट्री करोगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये एंट्री सेलिंग प्राइस होगी हमेशा। और जो माल आपने कस्टमर को भेजा उसका लागत मूल्य 12,000 रुपए, जब आपने जो सेल्स को रिवर्ट कर दिया तो फिर जो माल कस्टमर को आपने भेजा था आपने अपने स्टॉक में से घटा दिया था, तो अब आप स्टॉक में भी इसको आपने वापस ऐड करोगे, क्योंकि जब इसको सेल्स नहीं मानना है तो फिर इसका मतलब है वो स्टॉक भले कस्टमर के पास पड़ा है वो आपको अपने स्टॉक में जोड़ देना, वो स्टॉक में जो ऐड करने की एंट्री है वो कॉस्ट प्राइस पे होगी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस विच एवर इज लेस। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन यहाँ 12,000 रुपये दिया हुआ, तो इसकी दूसरी एंट्री क्या बनेगी स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। तो अब स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू ट्रेडिंग करेंगे, तो ट्रेडिंग में आ जाएगा बाई स्टॉक विद कस्टमर 12,000 में, जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है उसके अलावा ये और आएगा और ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में भी आएगा। तो इस तरह से इसका 4 जगह प्रेजेंटेशन होगा। जब आप करोगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर तो इससे सेल्स घटेगी 15,000 रुपया और डेटर भी घटेगा। ये 15,000 कैसा आएगा मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो एडजस्टमेंट है उसको मैं लिख रहा हूँ, मैंने जैसे कॉस्ट प्राइस इज ₹12,000 एंड प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, राइट। तो सेल्स इज नॉट गिवन, इसलिए सेल्स इज इक्वल टू 100 एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना है 20% ऑन सेल्स। तो ये कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट इज इक्वल टू हो गई 80%। अगर आपने कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में 12,000 रुपये माल की और ये 80% के बराबर है तो व्हाट विल बी 100%। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 8 1 जा और 8 में जाए 4 8 5 जा 40, ये 1500 into 10 15,000 रुपये, यानी कि कॉस्ट प्राइस इज 12,000, प्रॉफिट ऑन सेल्स इज 20% एंड सेल्स इज नॉट गिवन। तो जो अननोन है ना दैट विल बी कंसीडर्ड एज 100, क्योंकि कॉस्ट सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट या 3 एलिमेंट है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ 12,000 में, जबकि प्रॉफिट की रेट क्या है 20% ऑन सेल्स। तो सेल्स जब नहीं दिया हुआ है तो द सेल्स इज इक्वल टू 100, परसेंटेज को तो 100 मानेंगे
और फ्रैक्शन में दिया हो तो 1 मानेंगे। तो लेट सेल्स इज इक्वल टू 100 एंड प्रॉफिट इज 20, तो फिर कॉस्ट इज इक्वल क्या होगा, हमारा फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट एंड कॉस्ट इज इक्वल टू जाएगा सेल्स माइनस प्रॉफिट। तो सेल्स 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो कॉस्ट हो गया 80, और अगर कॉस्ट रुपीज 12,000 है व्हिच इज इक्वल टू 80%, तो कॉस्ट 12,000 अपॉन 80% करोगे तो अपॉन 80% किया तो अपॉन 80 into 100 हो गया और ये 15,000 आ गया। तो हमारी इसकी दो एंट्री बनेगी ना, सेल्स टू डेटर, रिवर्स एंट्री बनेगी 15,000 से, तो सेल्स टू डेटर, डेटर बाय सेल्स आ गया, ठीक है। और फिर हमारा जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट किया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बी मेंटेन एट द रेट ऑफ 10% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट 5% ऑन डेटर। तो ये दोनों प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी बनाना है और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी बनाना है। और ये जो मैंने आपको प्रोविजन को बनाया, दिस इज फॉर एडजस्टमेंट नंबर 6। अब मुझे इनके अकाउंट्स बनाने हैं सारे, तो मैं सबसे पहले सभी डेटर अकाउंट बना देता हूं, यही। अब डेटर से रिलेटेड जो एंट्री है वो इधर आ जाएगी, सभी डेटर्स अकाउंट, ये डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, राइट। और ये जो सारे अकाउंट मुझे बनाने पड़ेंगे, तो ये जैसे मान लो बैड डेट्स अकाउंट है, तो पहले बैड डेट्स अकाउंट भी बनेगा, और तो बैड डेट्स अकाउंट बनेगा, बैड डेट्स में टू फर्दर बैड डेट्स आएगा, और फिर उसके बाद में हमने बनाना पड़ेगा क्या, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो ये बैड डेट्स के बाद में मैं बनाऊंगा बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये भी आप अकाउंट बना। अब बैड डेट्स अकाउंट है ना, वो सारा सभी डेटा अकाउंट 6 लाइन का बना लिया, 6 लाइन का। बैड डेट्स अकाउंट है वो 3-4 लाइन का बना लिया। फिर बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट है वो भी 3 लाइन में 4 लाइन का बचा, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। और उसके बाद में हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट बना देंगे, तो बैड डेट्स रिकॉर्ड अकाउंट भी 3 लाइन का होगा, चलेगा, काम हो जाएगा हमारा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, और ये आप 5-6 लाइन का बना दें। फिर आप बनाओगे डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अलग अकाउंट है, तो डिस्काउंट अकाउंट ब्रैकेट में तो अलग, सो दैट इट विल क्लियर फॉर यू डिस्काउंट अकाउंट। और उसके बाद में आप बनाओगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, बनाएंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये सारे खाते मैंने एक साथ बनाए, क्यों बनाए, क्योंकि यू नो देयर आर सो मेनी एडजस्टमेंट गिवन इन beneath the trial balance, below the trial balance, तो इनको अब अगर जो खाते हैं इनको पहले खोलना है। तो when the trial balance is given and we are to open the account, तो जो डेबिट साइड पर आइटम दिए हैं वो सब पे टू बैलेंस बीडी आएगा, क्रेडिट वाले में बाई बैलेंस बीडी आएगा। जो डेबिट में होता है वो एसेट्स होता है या लॉस होता है या एक्सपेंसेस होता है, और जिस आइटम की अकाउंट की अमाउंट क्रेडिट साइड में दिया वो हमारा इनकम होता है, गेन होता है, लायबिलिटी होता है। तो आप देखिए सबसे पहले स्टडी डेट राइट हियर है टू बैलेंस the given amount is 84,000. Next is bad debt. Bad debt से लॉस होता है, और जो दिया है ना वो हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी एंड इट इज बैड डेट्स व्हिच इज रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। इसकी जर्नल एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। फिर बैड डेट्स रिकवर्ड दिया हुआ है, तो बैड डेट्स रिकवर्ड हमारी इनकम होती है, कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट्स रिकवर्ड, भाई कैश आता है ओरिजिनली, पर हमें यहाँ बैलेंस दिया हुआ है तो मैं इसको क्रेडिट साइड में लिखूंगा, भाई बैलेंस बीडी ₹6,000। फिर हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का बैलेंस दिया, ये भी हमेशा आएगा बाय बैलेंस बीडी। जितने भी रिजर्व एंड प्रोविजन होते हैं ना उनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। सिर्फ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेटर ही एक ऐसा प्रोविजन है जिसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, बाकी सारे प्रोविजन एंड रिजर्व वो क्रेडिट होते हैं बिकॉज दे आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड दे आर पार्ट ऑफ प्रॉफिट। फिर है डिस्काउंट अलाउड 1500, और डिस्काउंट अकाउंट भी हमारा लॉस होता है तो हम डेबिट को अलाउड करते हैं, तो ये 1500 आ गया टू बैलेंस बीडी। ऐसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का बैलेंस भी क्रेडिट होगा, आप इधर लिखोगे बाय बैलेंस बीडी ₹2600। So in the first step we have opened all the accounts, the balance of which is given in the question, and now we will
prepare entries for every adjustment which is given outside the trial balance. इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब हमें लेजर अकाउंट बनाना हो तो जिन जिन अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ उन सबका अकाउंट हमें ओपन करना है और किसी भी अकाउंट का बैलेंस या तो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, बस तीसरी कोई बात होती ही नहीं है। और डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ये आप जानते हैं। डेबिट होता है सारे एसेट्स के अकाउंट, डेबिट होता है सारे एक्सपेंसेज के अकाउंट, लॉसेज के अकाउंट। क्रेडिट क्या होता है, सारे इनकम्स के अकाउंट, गेन्स के अकाउंट एंड लायबिलिटीज के अकाउंट। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया सारा बैलेंस। अब नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट, बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ। आप हर एंट्री का, हर ट्रांजैक्शन का आप एक जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री या रेक्टिफिकेशन एंट्री जो भी हो रही है वो आप एंट्री बनाएंगे। उस एंट्री का इन 6 खातों में अगर जो नाम आता है तो वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पोस्टिंग कर देंगे। तो जर्नल एंड लेजर आपको आता ही है। और फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट बना रहे हैं हम, और इसमें भी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेटर्स एक छोटे से पॉइंट पर हमने एक बड़ा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन दिया है जिसमें वैरायटी ऑफ एडजस्टमेंट मैंने डाला है। इससे पहले अगर आप इस एडजस्टमेंट को, इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले मेरा एडजस्टमेंट एंट्री से रिलेटेड वीडियो नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4 देखेंगे। एंड दिस इज माय वीडियो रिलेटेड टू एडजस्टमेंट एंट्रीज, 5th वीडियो। ठीक है, जिसमें मैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स से रिलेटेड जो है वो एडजस्टमेंट समझा रहा हूँ। और इससे पहले वाले वीडियो में भी है ना, वो एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेटर ही है, बट उसमें क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का बैलेंस ओपनिंग में नहीं दिया हुआ था, तब हम कैसे अकाउंट क्लोज करते हैं वो वहां समझ में आएगा। तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद में आप इस वीडियो को देखेंगे ना तो समझ में आएगा। ठीक है, वो जो पुराना इससे पहले वाला जो वीडियो है वो एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेटर, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेटर 1 है, और टोटल हमारा एडजस्टमेंट एंट्रीज का वो 4th वीडियो एंड दिस इज 5th वन, राइट। तो अब देखिए पहला, बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ। एंट्री क्या बनेगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो बैड डेट्स में आ जाएगा टू डेटर अकाउंट, नरेशन हो जाएगा बी। फर्दर बैड डेट्स रिटन ऑफ, इट इज 6000। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेट्स में लिखना है आपको टू डेटर। तो ये बैड डेट्स अकाउंट ऊपर वाला है, बैड डेट्स अकाउंट में लिखोगे टू डेटर्स अकाउंट ₹6000। तो बैड डेट्स आया टू डेटर, तो बताओ डेटर में क्या आएगा, वी विल राइट हियर बाय बैड डेट्स, बाय बैड डेट्स ₹6000। ये जो पहला एडजस्टमेंट दिया हुआ है इसकी एंट्री बनी बैड डेट्स टू डेटर। यहाँ हमारा बैड डेट्स अकाउंट भी है और डेटर अकाउंट भी बना रहे हैं। तो बैड डेट्स में आया टू डेटर अकाउंट, डेटर में बाय। तो ये जर्नल और लेजर है, ठीक है। और बैड डेट्स रिटन ऑफ की एडजस्टमेंट एंट्री है बैड डेट्स टू डेटर। फिर नेक्स्ट एंट्री हमारी क्रेडिट सेल्स रॉन्गली एंटर्ड ट्वाइस ₹12,000। क्रेडिट सेल्स की एंट्री होती है हमारी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और यहाँ आपने गलती क्या की, इसको 2 बार लिख दिया। तो एक बार जो लिखा वो गलत लिखा, तो इसकी वापस रिवर्स एंट्री कर दो, तब ये गलती का सुधार हो जाएगा। एरर ऑफ कमीशन, ये हिसाब की अशुद्धि आपने गलती से 2 बार लिख दिया, तो you have committed a mistake and mistake should not be carried on. Whenever you detect the error or mistake, it should be rectified immediately. तो यहाँ हमारा जो सेकंड पॉइंट है, क्रेडिट सेल्स रॉन्गली एंटर्ड ट्वाइस ₹12,000। क्रेडिट सेल्स को गलती से 12,000 रुपये से 2 बार लिख दिया, तो एक बार आप उसकी रिवर्स एंट्री वापस कर दो तो रेक्टिफाई हो जाएगा। यू नो क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है, डेटर टू सेल्स। अब आप क्या करोगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो डेटर में क्या आएगा, बाय सेल्स अकाउंट। जितने रुपए का है 12,000 का है, तो आप यहाँ 12,000 से क्योंकि पूरी एंट्री वापस आपने करनी है। अगर ये होता कि ओनली जो है ना डेटर में ही आपने 2 बार लिखा तो फिर वो हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्योंकि वो यूनिलैटरल एरर होती है एंड ऑल यूनिलैटरल एरर आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट। बट यहाँ पे क्या था, क्रेडिट सेल्स रॉन्गली एंटर्ड ट्वाइस। क्रेडिट सेल्स की एंट्री गलती से 2 बार की, तो मतलब और एंट्री क्या होती है, डेटर टू सेल्स हो, तो अब सेल्स टू डेटर करना पड़ेगा। तो सेल्स अकाउंट में भी टू डेटर लिखोगे इस ट्रांजेक्शन के लिए, और डेटर में बाय सेल्स आएगा, राइट। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट ऑफ डेटर रॉन्गली ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा लिख दिया, टोटल ज्यादा लगा दी। अंडरकास्ट मतलब कम। अगर आपने डेटर कम लिखा तो जैसा कि मैंने पहले वाला हमारा वीडियो में मैंने वहां लिखा था लिस्ट ऑफ डेटर रॉन्गली अंडरकास्ट, तब आप बढ़ाओगे, एंट्री बनेगी डेटर टू सस्पेंस। ये यूनिलैटरल एरर है, एक पक्ष से अशुद्धि है, क्योंकि टोटल आपने किसी खाते की ज्यादा लगा दी या कम लगा दी तो वो यूनिलैटरल एरर होती है और सस्पेंस से सुधारी जाएगी।
और यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट क्या है, लिस्ट ऑफ डेटर रॉन्गली ओवरकास्ट, मतलब आपने डेटर को ज़्यादा लिख दिया, टोटल ज़्यादा लगा दी, तो डेटर का नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है। अब आप क्रेडिट करोगे तो एंट्री क्या बनेगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर आएगा बाय सस्पेंस, बाय सस्पेंस लिस्ट ऑफ डेटर कितना 8000, तो इधर आ जाएगा, तो इससे रेक्टिफाई हो गया सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। डेटर का बैलेंस टोटल आपने ज्यादा लगाई तो डेटर बढ़ गया, अब आपको घटाना है तो टू डेटर करेंगे, एंट्री बनेगी सस्पेंस टू डेटर, तो डेटर में बाय सस्पेंस है, राइट। फिर नेक्स्ट है चेक डिस्काउंट, सॉरी उसके बाद है डिस्काउंट दिस अलाउड मोर दैट डिस्काउंट, तो देखिए डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या होती है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर, अब डिस्काउंट दिस अलाउड हो तो उसकी वापस रिवर्स एंट्री क्या होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अलाउड की एंट्री होती है डिस्काउंट टू डेटर, और डिसअलाउड की एंट्री क्या होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, तो आप डेटर को डेबिट करोगे, वापस आपका डेटर बढ़ गया 300 रुपीज, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, तो डिस्काउंट में क्या आएगा, डिस्काउंट बाय डेटर आएगा, ये बाय डेटर या पोस्टिंग होगी 300 रुपीज, तो ये हमारी फोर्थ एंट्री है, जो ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है डिस्काउंट डिसअलाउड, एंट्री क्या बनी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर तो ओरिजिनल एंट्री होती है, अब हमने करी है डेटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, तो डेटर अकाउंट में आ गया टू डिस्काउंट और डिस्काउंट अकाउंट हो गया बाय डेटर, राइट। नेक्स्ट है चेक डिसऑनर, चेक डिसऑनर हो गया, मतलब चेक आपको कौन देता है, कोई देनदार देता है, अब जो कोई देनदार आपको चेक दिया और आपने बैंक में जमा कराया, तो इसकी हमारा एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो ये बैंक से रिलेटेड एंट्री है, और मैंने आपको एक अलग वीडियो बना के पूरा भेजा था एडजस्टमेंट एंड ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बिजनेस एंड बैंक, जब हमने बैंक कॉलम कैश बुक बनाई थी ना, उससे रिलेटेड ये मैंने बैंकिंग ट्रांजैक्शन पूरे डिटेल में समझाए हैं, तो अगर आपको ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन में कोई डाउट है तो आप मेरा वो वीडियो देखेंगे जिसमें ट्रांजैक्शन विद बिजनेस एंड बैंक है, उसका ये बात है। तो चेक डिसऑनर की एंट्री हो जाएगी वापस डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि जब हमने चेक बैंक में भेजा था तो हमने क्या किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, इससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया था, हमने डेटर को घटा दिया था, ये मान लिया था कि हमें चेक का पैसा मिल जाएगा, बट लेटर ऑन इफ द चेक इज डिसऑनर्ड तो क्या होगा, वो देनदार वापस हमारा देनदार बन जाएगा, और बैंक का हमने जो खाता बैलेंस बढ़ा दिया था अब हमें वापस घटाना पड़ेगा, तो हमारी एंट्री बनेगी क्या, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक डिसऑनर। हाँ, अगर ये डिस्काउंटेड बीआर डिसऑनर की बात हो तब भी एंट्री ही होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बी डिस्काउंटेड बीआर डिसऑनर, और चेक डिसऑनर की एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितनी है, इट इज 1700, राइट। फिर नेक्स्ट है हमारा गुड्स एंड नॉट अप्रूवल, 12000 का लागत का माल, हमने इसको सेल्स के रूप में लिख दिया, और प्रॉफिट ग्रेड 20% ऑन सेल्स है, ये मैं आपको एडजस्टमेंट पहले समझा चुका हूँ, इसकी हमें 2 एंट्री बनानी है, हमने ओरिजिनली लिखा है क्या, डेटर टू सेल्स, अब हम करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर अकाउंट हम यहाँ लिखेंगे बाय सेल्स, और ये सेलिंग प्राइस का आएगा 15,000, ये ऑलरेडी मैंने निकाला है, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पसंदगी पर भेजा गया माल, तो जो माल वर्ष के अंत में पसंदगी पर भेजा जाता है, और हमने जो कस्टमर को टाइम दिया भी आप सप्ताह भर में अगर पसंद आ जाए तो रख लेना, नहीं तो माल लौटा देना, और हमने जो टाइम अलाउड किया वो अगले साल में एक्सपायर होगा, तो ऐसी स्थिति में करंट ईयर के एंड में हमने उसको बिक्री नहीं मानना चाहिए, सेल्स नहीं मानना चाहिए, अगर हमने उसको सेल्स के रूप में लिख दिया तो उसको वापस रिवर्स एंट्री कर दो, और इसके साथ ही जो माल का लागत मूल्य है उसको भी हम अपने स्टॉक में शामिल कर लेंगे, हम उसकी एंट्री बनाएंगे, वो होगी स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, और जो माल को सेल्स नहीं मानना उसकी हम एंट्री कर देंगे वापस डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स की जगह क्या करोगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर में बाई सेल्स आ जाएगा, इससे हमारा क्या होगा, डेटर की अमाउंट घट जाएगी, क्योंकि वो हमारा देनदार नहीं माना जाना चाहिए। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि वी आर टू फॉलो द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग हमें ये बताता है कि हमें किसी भी कारण से कभी भी प्रॉफिट को गलती से ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए, न कम दिखाना चाहिए, और अभी जो हमने पसंदगी पर माल भेजा वो बिक्री के रूप में लिख दिया, तो वास्तव में ये बिक्री हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो ये हमारे बात अभी क्लियर नहीं है, इसलिए इट इज बेटर नॉट टू कंसिडर दिस काइंड ऑफ सेल्स एज फाइनल सेल्स एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसीलिए हम क्या करते हैं,
जो पसंदगी पर भेजा गया माल होता है उसकी रिवर्स एंट्री करनी है हमेशा, और वो सेलिंग प्राइस पे होगी। और जो माल कस्टमर को हमने भेजा हुआ है पसंदगी पर, उसका जितना लागत मूल्य है ना वो वापस हमारे स्टॉक में जोड़ेंगे। जब इससे हमारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में भी आएगा, बाय स्टॉक विद कस्टमर, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में भी करंट एसेट्स के रूप में अपन लिखेंगे स्टॉक विद कस्टमर। ये बात है। तो इसका हमारा एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। और नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट क्या है, वो प्रोविजन फॉर वेंडर्स को बोला 10% मेंटेन करना है, और डिस्काउंट ऑन डेट को भी आपको 5%। तो अब मुझे इन सारे अकाउंट को क्लोज करना है। तो सबसे पहले मैं डेटर का बैलेंस निकालूंगा, ये हमारा एडजस्टेड डेट कहलाएगा। हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD। तो आपके डेबिट की साइड की टोटल कितना हो गया, इट इज 86,000। और अभी इसकी यहां तक की टोटल कितनी है, 12, 8, 20, 30, 40, 41। ये हमारी यहां तक की टोटल है 41,000। ठीक है, तो 86 में से 41 घटाओगे इट विल बी 45,000 रुपीस, राइट, एंड टोटल इज 86,000। ठीक है, 12, 20, 30, 40, 41, 86 माइनस 41 इज इक्वल टू 45,000। अब ये हमारा डेटा है। अब मुझे बैड डेट्स अकाउंट को क्लोज करना है। तो बैड डेट्स अकाउंट को क्लोज करने की दो एंट्री मैंने आपको बताई थी। अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं दिया हुआ तब तो अपन करेंगे P&L अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। तो बैड डेट्स से बाय P&L आएगा, P&L में टू बैड डेट्स आ जाता है। लेकिन जब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिया हुआ होता है तो फिर बैड डेट्स को हमेशा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स से बंद करेंगे, क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड एट ए सर्टेन रेट ऑफ ऑन डेटर्स with a view to write off the loss on account of bad debts। तो यहाँ bad debts भी है और provision for bad debts भी है। तो मैं इसको bad debts अकाउंट को बंद करने के लिए लिखूंगा by provision for bad debts account it is 10,000। तो फिर देखिए provision for bad debts क्या आ जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे two bad debts rupees 10,000। और उसके बाद में जो नेक्स्ट हम अकाउंट क्लोज करेंगे वो है हमारा बैड डेट्स रिकवर्ड। तो बैड डेट्स रिकवर्ड हमारी इनकम है। तो जब बैड डेट्स हमने राइट ऑफ किया तो प्रोविजन को बैड डेट्स पे डेबिट किया। अब अगर कभी आपको बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाए तो वापस उसको भी प्रोविजन को बैड डेट्स पे ट्रांसफर करेंगे। तो बैड डेट्स रिकवर्ड की हमारी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, और इसको क्लोज करने की एंट्री होगी या तो P&L अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू P&L। वो कब होगा, जब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं दिया हो, और जब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ हो तब हमारी एंट्री बनेगी बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो बैड डेट्स रिकवर्ड में मैं लिखूंगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रुपीज 6,000। इससे हमारा ये अकाउंट क्लोज हो गया। तो एंट्री बनी बैड डेट्स रिकवर्ड टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में आ जाएगा बाय बैड डेट्स रिकवर्ड it is 6,000। ठीक है, और अब मुझे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को मेंटेन करना चाहिए 10% ऑन डेटर, तो वो 45,000 की बनेगा। और जब मेंटेन वर्ड होगा ना तो अपन टू बैलेंस CD पहले लिख देंगे, और कितना परसेंट है PFD 10% ऑफ 45,000। तो आप देखिए हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट कितना हो जाता है, ये 4,500 हो जाता है। तब आप देखिए आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस you see the total of credit side is 15,000 in PFD अकाउंट, और जो हमें डेबिट साइड की टोटल है वो 10,000 तो बैड डेट्स के और 4,500 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के आगे ले जाते हैं। हमारी टोटल रिक्वायरमेंट 14,500 है, जबकि हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है 15,000। तो अब देखिए डेबिट में मैं यहाँ लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर से आएगा कितना रुपया, 15,000 में से 10 और 4 14,500 रुपये घटाओगे इट विल बी 500। तो P&L में आएगा बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू P&L। तो P&L में आएगा सिर्फ बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ओनली 500। और ये जो टू बैलेंस CD है वो डेटा में से घटा दिया जाएगा जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, राइट। टोटल हो गई हमारी 15,000। तो अब हमारे डिस्काउंट अकाउंट को हमने क्लोज करना है। तो डिस्काउंट करें तो डेबिट बैलेंस है 1,500 रुपये और क्रेडिट में 300 रुपये। तो
तो डिस्काउंट ऑन डेटर को भी बंद करने के लिए अगर प्रोविजन को बेड डेट्स नहीं दिया हुआ तब तो हम करेंगे P&L टू डिस्काउंट, और जब प्रोविजन को डिस्काउंट ऑन डेटर दिया हुआ हो तब हमारी एंट्री होगी प्रोविजन को ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अकाउंट आएगा हमारी प्रोविजन और डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट, ये 1200 रुपये आ जाएगा, टोटल हो गया 1500 एंड डेबिट साइड हो गई ऑल्सो 1500। तो हमारी एंट्री बनी प्रोविजन और डिस्काउंट और डेटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू डिस्काउंट, ये 1200 और अब मुझे प्रोविजन और डिस्काउंट और डेटर को क्लोज करना है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब आप प्रोविजन और डिस्काउंट और डेटर बनेंगे वो हमेशा गुड डेटर बनेंगे, गुड डेटर अच्छे देगा, और गुड डेटर का मतलब होता है एडजस्टेड अमाउंट ऑफ डेटर्स माइनस एडजस्टेड अमाउंट ऑफ डेटर्स माइनस न्यू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। ये जो टू बैलेंस शीट हमने लिखा ना, ये प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का न्यू प्रोविजन कहलाता है, और जो ट्रायल बैलेंस दिया वो ओल्ड प्रोविजन कहलाता है। और ये जो न्यू प्रोविजन होता है ना, ये हमेशा एडजस्टेड अमाउंट ऑफ डेटर में से घटाकर दिखाएंगे बैलेंस शीट में, और उसके बाद में जो डेटर बचेगा उस पर हम कैलकुलेट करते हैं प्रोविजन को और डिस्काउंट ऑन डेटर। तो आप देखिए कैसे आएगा बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो उसके एसेट साइड में आप लिखोगे क्या, सन्डी डेटर, और सन्डी डेटर कितने आए, एडजस्टेड डेटर हमारे 45,000, उसमें से आप करोगे लेस प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। कौन सा घटेगा, जो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट में जो अमाउंट टू बैलेंस शीट है वो हमेशा घटाएंगे। 45,000 माइनस 4500 इट इज नाउ 40,500, और इस पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेट बनेगा कितना 5%, तो वो मैं यहाँ घटाऊंगा लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेट, और वो कितना होगा, वो यहाँ लिखूंगा टू बैलेंस शीट 5/100 इंटू कितना 40,500 इस पे बनेगा, यानी कि एडजस्टेड अमाउंट ऑफ डेटर्स में से प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का न्यू प्रोविजन की राशि घटाने के बाद जो डेटर बचते हैं ना उनको हम गुड डेटर कहते हैं, अच्छे डेटर, गुड डेटर्स, और उसी पर कैलकुलेट होता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेटर। तो आप देखिए ये जो इसका टोटल होगी कितना आ जाएगा 405 into 5, तो ये हो जाता है 2025, 2025, ठीक है। तो ये 2025 में यहाँ बैलेंस शीट में डेटर में से घटाकर दिखाएंगे, तो ये 38,475 आएगा बैलेंस शीट में इस तरह से, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेटर डेबिट टोटल इज नाउ हायर देन क्रेडिट टोटल, इट इज 3,225। तो अब आप यहाँ लिखो कि बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बैलेंस शीट फिगर से आ जाएगा, और ये हम P&L में आएगा। जब आपने लिखा PDL में बाई P&L एंट्री बनी P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो जाएगा, कितना हो गया, ये आ जाएगा 625 एंड टोटल हो जाएगा 3,220। ये इस तरह से आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेबिट अकाउंट 3,225 और वो 2600 था, ये माइनस किया, और ये बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो P&L अकाउंट में क्या आएगा, P&L अकाउंट में एक तो आएगा प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू P&L, ये एंट्री है, तो P&L में आएगा बाई प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 500, और दूसरा देखो इधर आया बाई P&L, तो एंट्री क्या बनी P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेट। तो अगर फाइनल अकाउंट का प्रेजेंटेशन भी दिखाना हो तो P&L अकाउंट के डेबिट में आएगा टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेट 625 रुपये, और इस खाते से आप देखिए प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट में हमने टू P&L लिखा है, तो एंट्री बनी प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू P&L, तो P&L में आएगा बाई प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 500। ये हुआ हमारा P&L में प्रेजेंटेशन, और ये बैलेंस शीट में इस तरह से आएगा सन्डी डेटर्स, कौन सा एडजस्टेड अमाउंट ऑफ डेटर, जो सारे एडजस्टमेंट दिए थे जिनमें डेटर अकाउंट अफेक्ट हुआ उसकी एंट्री आप पहले डेटर अकाउंट में करोगे, उसके बाद में जो बैलेंस ऑफ डेटर आया दिस इज कॉल्ड एज एडजस्टेड अमाउंट ऑफ डेटर, एंड एडजस्टेड अमाउंट ऑफ डेटर इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू कैलकुलेशन ऑफ द प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स में जो राशि टू बैलेंस शीट दी आती है वो न्यू प्रोविजन कहलाती है, इसको हमेशा घटाएंगे, और उसको घटाने के बाद जो डेटर बचेगा उस पर कैलकुलेशन होगी
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट, राइट, जैसा कि मैंने किया। और पीएफबीडी को घटाने के बाद जो सभी डेटर का बैलेंस है ये बैलेंस शीट में आएगा। तो इतने ये सारे एडजस्टमेंट हुए और ये जो खाते बनाएंगे और इनकी एंट्रीज ये करने का। तो इसको अगर आप और अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो है रिलेटेड टू एडजस्टमेंट एंड एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेटा का एक और वीडियो है, वो आप देखेंगे तो सर्टेनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। और इस चैप्टर को, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको देखो जर्नल एंट्री आनी चाहिए, आपको लेजर बनाना आना चाहिए, आपको ना बिल ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर आना चाहिए, आपको सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन आने चाहिए, आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज आनी चाहिए, आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री आनी चाहिए, आपको क्लोजिंग एंट्रीज आनी चाहिए, आपको फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट बनाना आना चाहिए, तब आप ये कर पाए। क्योंकि ये हमारा अकाउंटिंग का एक समरी और लास्ट स्टेज का पार्ट होता है जिसमें हम कंसोलिडेटेड सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, बिजनेस का रिजल्ट निकालते हैं। तो इसके लिए आपको इफ यू वांट टू बिकम ए परफेक्ट अकाउंटेंट यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी चैप्टर। एवरी चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग is interrelated and you have to understand with example and with practical, then only you will be able to work as an accountant in any business organization. तो it is very important aspect। इसे आप इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखें जरूर, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आता यू कैन कॉल मी एट माई नंबर और यू कैन मैसेज मी थ्रू व्हाट्सएप, आई विल सर्टेनली रिस्पॉन्ड यू। ठीक है, तो पढ़ाई करिए, मेहनत करिए और ये अगर अच्छा अकाउंटेंट बनना है, परफेक्ट अकाउंटेंट बनना है तो ये हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जिसके लिए थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है और ये इसीलिए बाद में कराया जाता है। हम सीधे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट नहीं करा सकते क्योंकि इससे पहले अब जैसे मैंने आपको पढ़ाया ना तो सारा जब सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस में मैंने आपको बताया ना, पहले जर्नल बनाते हैं, सब्सिडियरी बुक बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, है ना। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में फिर हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, फिर फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट बनाते हैं और इसके साथ भी पहले हमने कैश बुक बना ली, एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर है, वो सब आपको आने चाहिए, तब आप ये फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट है वो अच्छी तरह से कर पाते हैं। Okay, thank you very much. God bless you. Watch this video and share this video to help your friends and colleagues. God bless you.